ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਈ, ਪਰੰਤੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾਈਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਟੀਚਮੈਂਟ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਮੈਂਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੈਚ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਭਾਈ। WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ SMS ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਹੈ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਖੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਭਾਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਚਮੈਂਟ ਐਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇਖਣਾ ਬਾਈ। ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇਖਣਾ, ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੋਨੋਂ, ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਆ ਰਹੇਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਈ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਭ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਵਾਂਝ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਜਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿਨੇ ਆਨਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਿਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਭਾਸ਼, ਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਈੜੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੱਤ ਤੇ ਸੱਸਾ ਲਾਂਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ।
ऊड़ा ऑप्शन सही है भाई, पास तो हुई है। और सरल क्वेश्चन सी, और अपना टीचा यह है कि आप सौख तो औख दी वल चलांगे, क्योंकि 2011 वाला पेपर सी सौखा आया सीगा, तो शुरू तो की करांगे आप सौखे पेपर लवांगे, उस तो बाद औखे पेपर। तुसीं वेख्या होवेगा इस तो पहला ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਪਾਏ ਸੀਗੇ 10 ਟੈਸਟ 9 ਜਾਂ 10 ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਕਾਫੀ ਟਫ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬੀਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਏ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਰਹੇਗੀ ਭਾਈ ਹਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਓ ਬਈ सरल पेपर च ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਵੇ, ਔਖੇ पेपर च ਆਪਣੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਰਮਿਆਨੇ पेपर ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ पेपर हैंडल करना है, ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਈ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਨਚਿਤ ਲੱਗਦਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਈੜੀ, ਨਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, बुनियादी तौर पर ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬਈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਭਾਈ, क्वेश्चन ढंग नाल पढ़ना सी। एक तो की करना कि क्वेश्चन सचेत होकर पूरे सही तरीके नाल आपां पढ़ना है भाई। जिवें कोशकारां दी नज़र च, इत्थे कोशकारां दी नज़र च गल करनी है, ते कोशकार जिहड़ी डिक्शनरी हुंदी है उहदे विच की हुंदा है कि अर्थां समेत शब्द हुंदे है। डिक्शनरी दे अंदर की है कि शब्दां दी सूची हुंदी है, उहदे अर्थ है। तुसीं डिक्शनरी तो जाणू हो चंगी तरह, ओके SMS करो भाई, डिक्शनरी तो जिहड़े जाणू है, जिहड़े डिक्शनरी तो तुसीं जाणू हो, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸੀਗਾ ਨਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰਲ ਸੀ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੱਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 50-50 ਚ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਭਾਈ। 50-50 ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨਚਿਤ ਲੱਗਦਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਦੇਖੋ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ 50-50 ਚ ਫਸਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਈੜੀ ਤੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-50 ਚ ਫਸਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਈੜੀ ਔਰ ਸੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈੜੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ, ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਬਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 50-50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਈ ਈੜੀ ਔਰ ਸੱਸੇ ਚ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈੜੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਬਈ। ਤੀਜਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਸੋਸੂਅਰ ਨੇ, ਜਾਨ ਲॉयज ਨੇ, ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਨੇ। ठीक है भाई, अलग अलग जवाब आए हैं, कईयां का जवाब ए है, काफी जणियां ने ये जवाब दिता है, ते ए बिल्कुल सही जवाब है भाई ए। हुण देखो थोड़ा विश्लेषण कर लीए आपां। तीजे का ए भाई सोसुअर, ठीक है, चौथे का बाद देखांगे भाई, निशान लग गया कोई गल नहीं। देखो फर्दिनांद सोस्यूर सी जिहड़ा, उन्हें आ गल की सी चिन्हां दे बारे भाई। भाषा है ना जिहड़ा चिन्हां दा सिस्टम है वो कहंदा सीगा चिन्ह काला जिहड़ा उन्हें थ्योरी सी वो दित्ती सी भाई। चलो उनकी गल की करनी, वो पानी तो प्रभावित सीगा, अपने इधरले व्याकरण उन्हें पढ़े हुए सी, उस दे आधार ते उनकी सारी थीसिस सीगी भाई। वो मर गया सीगा
परंतु उनके बाद उनके चेलियां ने छपाई सी पई। चलो एक लंबी चौड़ी कहानी है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर जाणू होवांगे इस तो आपां। पर आपां गल करिए भाषा चिन्हां दी व्यवस्था, ये सोसूर ने कहा सीगा ते हुण की है कि बच्चियां ने की कर रखिया सी, जिवें सोसूर ते चौमस्की पढ़े हुए सी तां अपने दिमाग 'च आ सकदा सीगा जिवें कि चौमस्की हो सकदा, जिवें एक बच्चे ने इहदा कीता। नाम मैं किसी बच्चे का भी नहीं लवांगा भाई, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। आपां सिर्फ की कहते हैं कंटेंट की तरफ चलना है, भी किस तरीके नाल आपां सही तरह मूव करदे। तो मेरा यह मनना है कि चौमस्की सी ना, उन्हें वाक जिहड़े वाक के पद्धर उत्ते काफी काम किया। वो कहंदा सीगा कि वाक है जिहड़े उन्हां तो असीमित वाक, सीमित रचना तो असीमित वाक है जिहड़े आपां बना सकदे हैं, ये गल कीती सी। चिन्हां बारे गल है जो चौमस्की ने कुछ भी नहीं कीती सी भाई। ते अगर देखो जिंदा भी ऑप्शन गलत होंदा है, अगर वो कंफ्यूज है तो वो एवें पावे भी मैं इन्हां दो ऑप्शनां दे विच सीगा। ते हाँ भाई दो ऑप्शनां दे विच अगर कोई ऐसा सीगा भाई जिन्हें सी ऑप्शन सही किया है, अगर वो कंफ्यूज सी किसी होर ऑप्शन नूं लैके, तो उहदे उत्ते आपां टक्कर नाल चर्चा करिए भाई, ताकि अपनी समस्या दा हल होवे। जिहड़ा अपना उपचारात्मक जिन्हों विधि कहते हैं उनकी आपां वरतों करिए भाई। हाँ जी, तुसीं सी दे बारे कन्फर्म ही सीगे या फिर होर किसी ऑप्शन दे चक्कर सी, दसो भाई। चलो ठीक है, कोई नहीं। ते जिहड़ा ऊड़े और ईड़ी दे विच कन्फ्यूज सी, तां उहनूं थोड़ा एवें सोचना सी, वो वाक दी गल कीती सी। हाँ ए और सी सीगा, चलो ठीक है, ए और सी सी। तां आपां थोड़ा ना चौमस्की बारे सोचना सी, चौमस्की ने की किया। चौमस्की ने जिहड़ी गल कीती है वाक पद्धर दे उत्ते कीती है, ते वाक पद्धर उत्ते कीती, इत्थे वाक वाला कोई काम नहीं है, तो वाक वाला कोई काम नहीं। तो सोसूर ने जिहड़ा सिस्टम किया था, चिन्ह चिन्हक वगैरह चिन्ह की गल की है, तो इन्हां दोनों उत्ते थोड़ा जिहा आपां टाइम लगांदे तां आपां ऊड़ा ऑप्शन है वो सही करदे भाई। कोई नहीं, गां आने वाले पेपर च जी गलतियां अपना नहीं होणगियां, क्योंकि अपना पहला दूजा ही टेस्ट है, और जो आप अगां जाके अगे टेस्ट देवांगे तो उस विच जी गलती नहीं होगी। विश्लेषण क्षमता मेरा कोशिश रहेगी कि मैं होर ज्यादा विकसित कर सका, क्योंकि मैं ये मनदा है कि अपना जो नोट्स है वो कम से कम सिलेक्शन नंबर है उन्होंने टच करूगा भाई, और फिर भी तुहाडे अंदर मैं जी स्किल पैदा कर दूंगा कि इन्ना कुछ तुहाडा पढ़िया होगा तो उस नाल तुसीं सही टारगेट तरफ कर सको। क्योंकि 50-50 चो अगर काफी क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो बच्चे का सिलेक्शन होना निश्चित हो जाता है, और 50-50 जो ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो सिलेक्शन तो दूर चला जाता है बच्चा। चौथा नंबर, संस्कृत दे विद्वान पाणिनि वैदिक भाषा नूं की कहंदे ने? ऊड़ा छंदस, ऐड़ा वेदां दी भाषा, छंदस रहित ते सस्सा छंदस सहित। हाँ जी, ये की कहंदे हैं कि थोड़ा जिहा आपां पढ़ना सी भाई ढंग नाल। वाह जी वाह, ठीक है भाई, कईयां दा सही भी है। हाँ तो कोई गल नहीं, तथ्यात्मक प्रश्न है भाई, तथ्य है, आपां नूं पता होना चाहिए सीगा विद्वान पाणिनि वैदिक भाषा नूं की कहंदा है। इस दे बारे तथ्य है भाई, की कहंदे भाई छंदस कहंदे सी, वेदां दी भाषा छंद सही तरीत की सी, तो कहंदे सी छंदस। ऊड़ा है जिहड़ा वो सही है भाई, ऊड़ा है वो सही है छंदस। ये तथ्य वाला प्रश्न सीगा, बिल्कुल टू दी पॉइंट गल की जाए। जाए मैं तुहाडे अगे प्रश्न रखदा मेरे पापे का की नाम है, मेरे बापू का की नाम है, मैं तुहाडे तो पुछ लवां तो तुहानूं क्वेश्चन आंदा ही नहीं भाई, मैं 4 ऑप्शन दे दूंगा, तुसीं किवें दे दोगे? ते तुसीं आ वेखना तथ्य तो संबंधित जिहड़ा हैगा उस दे विच आपां की करिए। तथ्य दे विच एवें आ सकदा है बई आपां किसी तथ्य तो जाणू होइए, तथ्य तो आपां जाणू होइए, परंतु दूजा तथ्य अपने दिमाग के अंदर आ रहा, तो 2 तथ्य हो जाते हैं, आपां 50-50 के अंदर फस जाते हैं। तो वो एक अपने सामने आ सकता है भाई, कॉल बैक की समस्या। अगर किसी को कॉल बैक की समस्या हुई है तो उनका मैं समाधान दस सकता है बई वो कॉल बैक नहीं हो रहा सीगा, उन्हें पढ़िया होया सीगा और कॉल बैक नहीं हो रहा सीगा। जे तुसीं पढ़िया नहीं होया तो कॉल बैक किवें करना है, तो उनके बारे भी आप दस सकते हैं कि थोड़ी कहानी है जी उतों पिछों की दोबारा रिपीट करनी, किसी नाल समस्या हुई हो, क्योंकि किसी नाल जो समस्या हुई होगी ना तो फिर वो ही समझ सकूगा, बाकी इसते उदाहरण जीवंत नहीं होएगा। कॉल बैक च की करना होंदा है कि जिवें आपां पढ़ लिया पर आपां उस बारे भुल गए भाई, तो आपां उसनूं शुरू तो स्टार्ट करना है, उसनूं आपां जिथों पढ़े उस बारे सोचना है, आपां थोड़ा ध्यान च लैना है, ते उवें जदों आपां ध्यान च लवांगे तो अपने सामने थोड़ा उभर के आ जाएगा बई आ ऑप्शन होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड चो कॉन्शियस च आ जाऊगा तो आपां सही हो जाएगा भाई। ऊड़ा ऑप्शन सही सी, तब तो संबंधित सीगी, तुसीं चाहते तो छड़ सकदे सी। पंजवां नंबर, भाषा की है भाई? भाषा की है, नोट्स के अंदर है भाई, नोट्स अंदर है
क्वेश्चन ਹੁਣ मैं अक्सर ये गल कहना कि भाई सारे क्वेश्चन नोट्स तो ही पा दिए फिर काहदा पेपर होया भाई फिर तो ही हो गया भाई नोट्स चो ही सारा पेपर पाता तुसी नोट्स चो पढ़े मैं पेपर पाता ये तो खेड जी बन गई अरे आप तैयार इस हिसाब नाल तुहानू करना है कि नोट्स अपना की है कि सिलेक्शन नंबर छोऊगा परंतु फिर भी की कहते तुहाडे अंदर अज स्किल पैदा कर देनी है कि नोट्स चो अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तुसी पढ़िया होया है तुसी अपने पढ़े चो की कहते उस क्वेश्चन नू कर सको कलाकारी तो है ना यदि क्षमता आप विकसित करिए ना भाषा की है भाई भाषा संचार का माध्यम है धुनिया का समूह है खुद मुख्तियार समुच्चय अर्थबोध करोड़ वाली वस्तु है हाँ जी इनका की है कि ए ऑप्शन है सही है भाई संचार का माध्यम परंतु अगर तुहाडे चो जिंदा क्वेश्चन गलत होया ओनू कम से कम आ दसना पवेगा भाई किहड़े ऑप्शनां दे विच फसिया होया सी ओ या सीधा उनके दिमाग च सै नंबर आया ससा आया तो जैसे ही मैं ऑप्शन ए क्लिक करदा है किसी का गलत होंदा है जिंदा गलत होंदा है की करो फटाफट अपने मूव करो भाई मेरे दिमाग च आ दो चल रहे सीगे वो अगले एक्शन वास्ते प्रिपेयर हो जाए अच्छा ए तो डी च कन्फ्यूज सी अच्छा ए तो डी च कन्फ्यूज सी तो तुसीं वेख्या होना भाषा की जिहड़ी प्रचलित तुहानूं ये चीज आंदी है तुहाडे मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है भाषा की जिहड़ी सब तो प्रचलित परिभाषा हैगी है वो आ हैगी है भाषा की है मनुखी विचार वटांदरे का माध्यम है संचार का माध्यम है ऐसा आप अपने विचारों दूजे तक पहुंचाते हैं और दूजे के विचार है अपने ताही सुनते हैं तुसीं वेख्या होवेगा जदों भी भाषा की परिभाषा की गल की जाए तो इत्थों शुरू होता है देखो और इस तो भी गांह अगर जाइए आप अर्थबोध कराने वाली वस्तु है भाषा है जो संचार का माध्यम है भाई ये वध है संचार का माध्यम ज्यादा तकड़ा ऑप्शन है देखो आप जो गल करते हैं जो भी आप गल करते हैं ना तो वह अगले गल करते आप गल कर रहे हैं दोनों आप गल कर रहे हैं तो इस विच जो औखा अर्थ आ जाए ना औखा अर्थ आ जाए कोई शब्द आ जाए तो आप एवं नहीं पूछते भाई साहब तुसीं फलानी गल की सी ना इहदा मीनिंग दसो तुसीं गल की किसी नाल गल की होवे आप आपसी सारा दिन गल करते हैं परंतु किसी तो आप वर्ड मीनिंग नहीं पूछते वीर जी इनका वर्ड मीनिंग दस्यो नहीं जो संचार के माध्यम राही भाषा अपने को आती है तो आपको आपे पता लग जाता फलाने का मीनिंग आ है भाई इस बारे आ कह रहा होगा तो आप की करना सी इत्थे पॉपुलैरिटी तरफ जाना सी जिहड़ी परिभाषा आपको पता है देखो तुसीं आप सोचो भाई हुण तुहानूं याद आ गया होना भाषा की प्रचलित परिभाषा है जिहड़ी तुहाडे चेते आ गई होनी है भाई खुशबू जी चेते आ गई होनी संचार के माध्यम की जिहड़ी पॉपुलर परिभाषा है जिहड़ी उहदे विच आही है भाई अर्थबोध कराने वाली वस्तु नहीं है भाई क्योंकि आप किसी तो वर्ड मीनिंग नहीं पूछते सारा दिन तुसीं गल करोगे ना किसी तो वर्ड मीनिंग बेटे वीर जी आ तो मैनूं पता ही नहीं दसो आप ही समझ जाने हैं संचार के माध्यम राही अपने को आती है और आप समझ जाने हैं गल की पूरी वाक वरतों के हिसाब नाल आपां नूं पता लग जाता है भाई इसका है चलो ठीक है जी अगले क्वेश्चन ते जाने हैं भाषा की छोटी तो छोटी इकाई केड़ी है छोटी तो छोटी इकाई अर्थ धुनी रूपग्राम वाक बनतर हाँ जी सारियां दे जवाब आ गए बी बिल्कुल सही है बी भाई धुनी धुनी है जी सब तो छोटी इकाई है भाई वाक है जी सब तो वड्डी इकाई है तो सारे सही है कोई कंफ्यूज है ही नहीं सी तां अगे वधदे हैं भाई भाषा की विशेषता है ऊड़ा मनुखी सिरजना ऐड़ा दूर उभार वाली प्रणाली ई परिवर्तनशील सह उपरोक्त सारे सरल जा क्वेश्चन सी बिल्कुल सही गल है भाई भाषा की विशेषता है मनुखी सिरजना भी है दोहरी उभार वाली भी है परिवर्तनशील भी है उपरोक्त सारे सरल जा क्वेश्चन सी सरल क्वेश्चन है सचेत तौर पर पढ़ना अपना गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल सही है अज तक 2-3 क्वेश्चन सरल आए सीगे किसी दे भी गलत नहीं हुए वधिया गल है सरल क्वेश्चन अगर एक भी अपना गलत हो जाता है तो अपने इससे वड्डा घट है वो आप नहीं करना भाई भाषा की है ऊड़ा कला ऐड़ा संचार साधन ईड़ी मनुखी भाव सह काव रूप बिल्कुल सही गल है भाई भाषा की है संचार साधन है सारे दी सही है भाई संचार साधन है बिल्कुल सही है किसी का गलती नहीं हुआ ऊपर भी आप इस बारे चर्चा कर चुके हैं भाई 2011 का पेपर सी इस टाइप का आया सी भी अगले पिछले प्रश्न भिड़ते सीगे तुसीं वेख्या होवे तां एवें मिलदे जुलदे सीगे तां बहुत ज्यादा क्वेश्चन लोकां दे सही सी परंतु जिन्हां दे बहुत ज्यादा सही सीगे उन्हां दा सिलेक्शन होया सी भाई
9 ਨੰਬਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਊੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ, ਬੀ ਅਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ, ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਡੀ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। देखो ये क्वेश्चन सी ना थोड़ा जा मियारी क्वेश्चन सी, नैट लेवल का क्वेश्चन सीगा, विच मैं क्वेश्चन थोड़े थोड़े पाए है औखे, वो इस कारण पाए है ताकि की कहते हैं कि बच्चा थोड़ा जाणू हो सके बई देखो आ क्वेश्चन सरल सी, आ दरम्याना सी, आ थोड़ा औखा सीगा। ते जो थोड़ा जा औखा क्वेश्चन आ जाता है, आप देखो पढ़िया तो होया हुण, आप जे कह दईए बई गुरु जी ये तो तुहाडे नोट्स चों नहीं सीगा, भाषा बारे आप पढ़िया दा है, सारा कुछ आप पढ़िया दा है, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 9ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਏ ਔਰ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੀ ਔਰ ਡੀ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਈ ਬਾਈ, ਕਈ ਏ ਔਰ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਭਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ, संचार की गल की है। तो यह तो बहुत वधिया गल है कि अर्थ का प्रकार किसी ने किया नहीं, कि अर्थबोध है जो भाषा के अखीरले नंबर पर आता है भाई। सब तो पहला गल करते हैं आप जो ऊड़े होर सस्से च कन्फ्यूज सी भाई। देखो भाषा धुनी विज्ञान नाल तो संबंधित है, परंतु जो संचार की गल करिए ना, संचार के की प्रकारज होंदा है, सरकार संचार के अंदर, संचार के अंदर कारज होगा, जो भाषा संचार करेगी ना तो उसके अंदर कारज होएगा, प्रकारज होएगा, कारज तो बिना नहीं वो संचार कर सकती। तो इस कारण किसी का कि ऊड़ा ऑप्शन सी भाषा का प्रकारज। धुनी विज्ञान नाल संबंधित, देखो भाषा है जी धुनी विज्ञान नाल भी संबंधित है, धुनी व्योत नाल भी संबंधित है, और रूपग्राम नाल भी संबंधित है, मॉर्फिम नाल भी संबंधित है भाई, काफी चीजों नाल संबंधित है। तो इत्थे एक टुकड़ा उन्हें देता सी, तो इस कारण ये नहीं होना चाहिए सी भाई, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड च आप थोड़ा ऑप्शन करवाए नहीं हुए भाई अजे, धुनी विज्ञान धुनी व्योत जरूर आप पाते है, परंतु करवाए नहीं, जो आप करवाते तो तुसी ए ऑप्शन लगाते भाई। जो सी और डी दे कन्फ्यूज सी, तो भाषा के सभ्याचार नाल संबंध, देखो संबंध तो है भाषा का सभ्याचार दे नाल, परंतु संचार वाली जिहड़ी गल करिए ना आप, संचार का साधन है, उस प्रकारज का है, जो प्रकारज दे विच थोड़ा सभ्याचार भी आ जाऊगा, धुनी विज्ञान भी आ जाऊगा, काफी कुछ आ जाऊगा, थोड़ा वड्डा शब्द है, ता करके ऊड़ा ऑप्शन है वो सही है भाई, 9वें का ऊड़ा। अगे है जी 10वां, आप थोड़ा ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई ऑप्शन है जाए जो थोड़ा उनकी मियार उच्ची है भाई, वो उन्होंने दूजे ऑप्शन को समेटे हुआ अपने आप के, तो उसके उत्ते आप जाना है। चलो अगे गल करते हैं भाई, थोड़ा मियारी क्वेश्चन सी तां करके अपन दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं, पर तुसी जानू हो गए क्वेश्चनों के स्टैंडर्ड तो, और यही मेरी इच्छा सी भाई कि क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड तो आप जाणू हो सकी। हुण ये पेपर सैक्टर वाले पता होंदा है कि किहड़ा क्वेश्चन बच्चा सही करूगा किहड़ा नहीं करूगा। अगे उपभाषा का खेत्र, ऊड़ा भाषा तो वड्डा हुंदा है, भाषा के बराबर हुंदा है, भाषा के मुकाबले छोटा हुंदा है, उपरोक्त कोई नहीं। चलो ठीक है जी, मैं तुहानू उत्तर दसदा, उस तो बाद जिहड़ा जिंदा गलत है उसने दसना है भाई। भाषा के मुकाबले छोटा होता है उपभाषा का खेत्र। जल्दी भाई, जब मैं ऑप्शन पाता तो वो अगला दसे भाई मैं की मेरे दिमाग चल रहा सी, क्यों कन्फ्यूज सीगा, क्योंकि दिमाग च की चल रहा सीगा इस दे बारे तो आपां नू वो भी आप एक दिन चैट ओपन करके वेख लांगे भाई, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। हाँ जी जसी जी फटाफट ऑप्शन अपने क्लीयर करो भाई, की दिक्कत रहा, जल्दबाजी रही या फिर मैं 50-50 च कन्फ्यूज सीगा। ये लेट ना करो, लेट ना करो भाई, और अपने दसो भाई। जसी जी मैं इंतजार कर रहे हैं थोड़ा, जल्दबाजी रही, ढंग नाल पढ़िया नहीं गा, मतलब जल्दबाजी कर सकते हो, जे एल लिख दिया करो बस, 50-50 ऑप्शन मारो सीधा, 50-50 ना लिख लो भाई, ऑप्शन दो मनु केड़े केड़े ऑप्शन कन्फ्यूज सी भाई। दूजा ऑप्शन, क्योंकि आप सवेरे ही पेपर किया, शामी इसी कारण का हल करा रहे हैं भाई जे किते। हाँ सी बी ठीक है जी, सी बी दे अगर आप कंफ्यूज सी तो देखो तुसी थोड़ा एवें सोचना सीगा भी उपभाषा का खेत्र,
देखो उपभाषा के खेत्र बारे सोचना सीगा और भाषा के खेत्र बारे सोचना सीगा। टकसाली पंजाबी अपनी हैगी है बई, वो सारे ही टैक्सट बुकां दे अंदर आपां यूज करते हैं, वरतों करते हैं। तुसीं वेख्या होवेगा टकसाली पंजाबी माझी दी वरतों कीती जाती है भाई, ठीक है। और सारे पंजाब दे अंदर, सारे पंजाब दे अंदर जो कि राजस्थान दे अंदर भी जिहड़ी पंजाबी दी वरतों कीती जाती है वो टकसाली पंजाबी दी वरतों कीती जाती है। तां उनदा उपभाषा दा खेत्र छोटा हुंदा है और भाषा दा खेत्र है जिहड़ा वो वड्डा हुंदा है। पर तुसीं दिमाग च की सोचिया, मेरे हिसाब नाल जो बनदा है, तुसीं दिमाग च ये सोचिया भी मलवई है ना जिहड़ा मालवे वाले, हुण तुसीं मलवई हो शायद मैनूं लगदा हैगा, मालवे तो संबंधित हो, तुसीं एवें सोचोगे मालवे दा खेत्र तां बहुत वड्डा है यार, ते माझी दा जिहड़ा खेत्र है ना वो तां छोटा जिहा हैगा है, बिल्कुल भी। हाँ, ते तुहाडे दिमाग च चल रहा होगा क्योंकि तुहाडा जिहड़ा पिछोकड़ सी ना, तुसीं मलवई दा किन्ना वड्डा एरिया है, तो बठिंडे तो लैके ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਮਾਝਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਝਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਹੌਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀਏ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਵਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਆਬੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਣੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਦੁਆਬੀ ਆ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੁਆਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਾਝੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਲਾ ਦੋ। यानी कि आप सोच रहे सी थोड़े, यानी जिहड़ा अपना पद्धर सी सोचण दा वो थोड़ा, यानी कि आप अपने व्यक्तिगत लै गए। ते क्वेश्चन दे विच की है कि व्यक्तिगत, अच्छा सर नोट्स विच समांतर है उपभाषा तां शायद, अच्छा देखो तुसीं भाषा दी जदों आपां गल करिए ना, भाषा ते उपभाषा, भाषा ते उपभाषा की गल करिए तो आप उत्थे टकसाली पंजाबी जो वरतों की है, टकसाली जिहड़ी पंजाबी है उसके अंदर तुसीं वो नोट्स पढ़े हो भाई, टकसाली पंजाबी एक नोट्स है किसी चीज के उत्ते देख रहे हो, वो दोबारा देखो, उत्थे दिक्कत आ रही है तो अपनी रिकॉर्डिंग क्लास देखो भाई, रिकॉर्डिंग क्लास देखो। तो जिहड़ी अपनी टकसाली पंजाबी है वो माझी है, परंतु सारी माझी दी माझी टकसाली पंजाबी नहीं है भाई। टकसाली पंजाबी जिहड़ी माझी नूं कहा गया है वो टकसाली पंजाबी माझी है, परंतु टकसाली पंजाबी जिहड़ी केंद्री पंजाबी है ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੋ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਘੰਟੇ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। उपभाषा का खेत्र हो गया माझी, केड़े इलाके की उपभाषा है, पुआध दी, मालवे दी, माझे दी, दुआबे दी। मिनट मारो भाई फटाफट, सारे ने सही होना सी, बिल्कुल सरल क्वेश्चन, बिल्कुल सरल क्वेश्चन। बस इस कारण भाई आप पूर्ण तौर पर सचेत रहिए। माझी भाई ईडी ऑप्शन सही है, 12 नंबर। हुण तुहानूं पता लग गया केड़ा प्रश्न बिल्कुल ही सौखा है, केड़ा क्वेश्चन थोड़ा जिहा उत्ते है, थोड़ा जिहा उत्ते उहदा लेवल है, किस क्वेश्चन दा उत्ते होर लेवल उत्ते है। ये लेवल हुंदे क्वेश्चन दे, आप हर लेवल के क्वेश्चन को पछाण जाना है, ये बिल्कुल सौखा है, ये थोड़ा औखा है। हर क्वेश्चन जो सचेत होकर पढ़ना है, कि आप टपला खा जाइए वो काम नहीं करना, ठीक है जी। माझी भाषा केड़े इलाके की मुख्य बोली है, लुधियाना, संगरूर, अमृतसर, फिरोजपुर, माझा भाई माझा, ठीक है जी। सारे ने जवाब बिल्कुल सही है। ई अमृतसर, अमृतसर का इलाका जिहड़ा उत्थे माझी बोली जाती है भी, अमृतसर वाले इलाके, अमृतसर के नाल लगता इलाका, लाहौर का इलाका, इत्थे माझी बोली जाती है। तो 12वें का ईडी ऑप्शन सही है भाई, ए। अच्छा ए ऑप्शन भाई ये 12वें का उत्तर है कि अगले का आ रहा है? जस्सी जी तुसीं 12वें का उत्तर दिता कि अगले का दिता है भाई? आपां की करना है कि क्वेश्चन पेपर दोपहर ही कर लेना है, दोपहरे करके रखना है, और वही आपां अपने सामने रखना पन्ना। और उस टाइम मैं की कीता सीगा, उस समय मैं की कीता सीगा वो ध्यान रखना है। हुण आपां बिल्कुल उहदे विच बदलाव नहीं करना, उस विच क्वेश्चन च बदलाव नहीं करना, अपना गलत हो गया कोई दिक्कत वाली गल नहीं,
गलत हो गया अपना किहड़ा सिलेक्शन होने लगे है तुसी की कीता सीगा अच्छा अगर ए कीता सी तां बहुत ही जल्दबाजी च करता भाई और अगर सी कीता सी तुहाडा बिल्कुल सही है मतलब अगले आ की कहते हैं कि जो 12 नंबर क्वेश्चन सी बहुत सरल क्वेश्चन सी अपना बिल्कुल ठीक है जी सी क्वेश्चन सही है ओके सचेत रहने की लोड़ सी बस और कुछ भी नहीं 13 नंबर तिहाड़ा तिहाड़े किस उपभाषा के शब्द ने तिहाड़ा तिहाड़े तिहाड़े भा तिहाड़ा तिहाड़े भाई ठीक है जी हाँ जी तिहाड़ा तिहाड़ी की है कि ये शब्द ने जिहड़े ना वो हैगे है माझी दे ये किस दे है भाई माझी दे है भाई ऊड़ा कहता माझी सही है भाई हाँ भाई जिन्हें डी किया वो फटाफट अपना उत्तर लिखे फटाफट भाई मैं डी तो कन्फर्म सी कोई दिक्कत वाली गल नहीं और ए डी कन्फ्यूज सी जैवी मैं क्वेश्चन उत्तर टिक लगाना है ऊड़ा मैं सही किया है जिसका गलत है वो फटाफट ऑप्शन दसे अपना भाई मैं आ पढ़िया जल्दबाजी की तो जे लिख दे बस जल्दबाजी कला जे लिख दे मैं पता लग जाएगा भी जल्दबाजी की है और अगर क्योंकि जे ऑप्शन ही नहीं था और अगर वो कंफ्यूज सी तो फटाफट अपना छापे भाई दो फटाफट लिख दे बी डी अच्छा बी और डी दे ठीक है बी डी तुहानू इस कारण दिक्कत आ गई थोड़ा क्योंकि तुसी माझी मलवई झांगी ते दुआबी चारां चों की कहंदे कि किसी तो भी जानू नहीं सी पई ते हुण आपां एक गल करिए जो ਇਹ ਦਾ क्वेश्चन है तिहाड़ा ते तिहाड़े किस उपभाषा ਦੇ शब्द ने हुण आपां की आ गया कि चाहे बी डी आ गया बी डी दोनों ऑप्शन ही नहीं सीगे हुण मैं एक गल होर कहना चाहूंगा कि ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਰ क्वेश्चन तो काफी दूर खड़े आंसर तो अगर आप काफी दूर खड़े हैं तो इहदा मतलब यह है कि वो टॉपिक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ तत्थ है ਜਿਹੜੇ अपने सामने उभर के नहीं आ रहे तो इस विच आपां की करना है कि थोड़ी तैयारी च आपां तैयारी कमजोर है भाई अपनी तैयारी ਨੂੰ ਹੋਰ अपडेट करना पऊगा जी ठीक है भाई ओके SMS कर दो भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ मैं दसता है भाई क्योंकि दुआबी वाले बंदे ना वाह करके बोलते की करता वा किथे जांदा वा मलवई वाले जिहड़े है वो अलग तरीके नाल बोलते है भाई और माझी वाले बोलते की करन दिया किथे जान दिया की खान दिया ते मलवई वाले की किथे गया सीगा मखा मैं आखिया एवें करके बोलते हैं तो इत्थे आपां की कहंदे हैं कि इत्थे थोड़ा जिहा आपां नूं इह ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी है जिहड़ी हाँ जी होर किसी को आवाज की प्रॉब्लम आ रही है भाई मनदीप जी को आवाज की प्रॉब्लम आ रही है बाकी देखो भाई बाकी देखो और दसो भाई ओके SMS करो फिर आवाज संबंधी अगर कोई समस्या है तो भाई नहीं मेरी तरफों कोई समस्या नहीं है भाई मेरी तरफों ओके है आ रही है आवाज हाँ ठीक है जी आ रही है तो एक कदे समस्या तो समझाओ समस्या सारे में अगर समस्या होती है तो मतलब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि आप क्लास लगाने घंटे तो उत्ते दी हो जाती है फिर दोबारा अगर क्लास कुछ कच पच होती है तो भाई थोड़ा दोबारा मत्था मारना पै जाता है थोड़ा तो मैं चाहना है कि एक बार च काम वधिया हो ठीक है देखो इत्थे है कि चारों ऑप्शनों के बारे आप अगर जानू नहीं है तो आपको की करना है कि अपने तैयारी थोड़ी होर तैयारी की लोड़ है आप तैयारी थोड़ा होर करिए भाई होर रिवीजन दो एक दो रिवीजन दोगे तो थोड़ा 50-50 आ जाओगे और उस तो बाद ज्यादा रिवीजन होगी तो आप बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं 14 देखो आप हर एक ऑप्शन पर विचार करांगे भाई देखो भाई कित्थे अपने भाई तैयारी च कमजोरी है कित्थे अपने विश्लेषण च कमजोरी है कित्थे आपां नूं कॉल बैक नहीं हो रहा इन्हां सारियां उत्ते आपां नूं चर्चा करनी पऊगी ताकि आपां नूं विश्लेषण कितना होगा विश्लेषण तां होगा जे अपनी पिछले वधिया तैयारी हैगी है सारियां चीजां नूं आपां ध्यान च रखना है अगे दुआबी उपभाषा किस इलाके दी है अमृतसर हुशियारपुर लुधियाना संगरूर ठीक है जी दुआबी उपभाषा किस इलाके दी है तो इस विच हुशियारपुर है जी एड़ा हुशियारपुर तुहानू मैं एक सूत्र लिखाया है भाई हुजका आओ उत्तर वो लिखाया सीगा हुजका हुशियारपुर जलंधर ते कपूरथला दुआबी बोली जाती है हुजका भाई हुजका ना मारो दबाओ ना हुजका ना मारो हुजका मार के लोग दबाना चाहते हैं ऐसा मैं तुहानू दसिया होया सीगा ट्रिक दसी हुई सी चलो जिन्हें ट्रिक नाल याद किया तुहानू ट्रिक याद रहनी चाहिए सी उन्हें जिवें ट्रिक तो देखा हुशियारपुर अगले ने ठा देनी ला था चको जी चलो सारा नहीं सही है भाई तथ्यात्मक क्वेश्चन है
अगर रिकॉर्डिंग अगर कोई देख रहा है उनका अगर गलत होया तो उनके लिए मैं आ कहूँगा कि तत्थ है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ याद नहीं है भाई, चंगी रिवीजन करो, पढ़ाई का समय है ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਓ। कोई 50-50 च है तो उसके बारे आप अगले क्वेश्चन तुहानू पता लग जाऊगा किवें निकलना। 15 नंबर, पंजाबी की उपबोली मलवई कित्थे कित्थे बोली जाती है? फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, रोपड़, लुधियाना, बठिंडा, संगरूर, मलेरकोटला, बठिंडा, हुशियारपुर, फरीदकोट, फिरोजपुर, रोपड़। हाँ जी, फटाफट ऑप्शन ते तुसी अगले क्वेश्चन तैयार रहा करो। जो पिछला क्वेश्चन खत्म जाए, मैं क्वेश्चन पढ़ा, तुसी दोपहरे किया होया, हुण कुछ नहीं करना, हुण सिर्फ आप समझना है भी दोपहरे अपने तो जो गलतियां हुई हैं उन्होंने समझना है। पेपर हुण नहीं करना, पेपर आप दोपहरे कर लिया, सवेरे कर लिया, हुण पेपर करांगे तो फिर गल नहीं बन सकनी। ठीक है जी, पहला ऑप्शन सी फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, रोपड़। इत्थे रोपड़ आ गया, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि रोपड़ पुआधी हैगी भाई। दूजे तो लुधियाना, बठिंडा, संगरूर, बिल्कुल सही है भाई। तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो मलवई दे है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। उस तो बाद आप गल करांगे इस तो अगले ऑप्शन की तरफ, मलेरकोटड़ा, बठिंडा, हुशियारपुर। हुशियारपुर चो नहीं आप गल की सी भाई, हुशियारपुर दुआबी है, नहीं हो सकता। सस्सा, फरीदकोट, फिरोजपुर, रोपड़, रोपड़ पुआधी है, नहीं हो सकता। इस हिसाब से आप जो बी ऑप्शन किया बिल्कुल सही ऑप्शन है, लुधियाना, बठिंडा, संगरूर। और सारे का बी ऑप्शन है सही है। जे किसी को रिकॉर्डिंग वेखने दिक्कत आ रही है तो उसने इस हिसाब से विश्लेषण करके और सही कर देना सीगा। 16 नंबर, पंजाबी की उपबोली पुआधी कित्थे बोली जाती है? ऊड़ा, पटियाला, रोपड़, मलेरकोटला, धूरी। ऐड़ा, पटियाला, जलंधर, हुशियारपुर, ईड़ी, रोपड़, कपूरथला, मलेरकोटला। ससा, धूरी, मलेरकोटला, हुशियारपुर। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सारे ने ए और सी दे विच कहंदे हैं कि साडे रहा है भाई जिहड़ी पुआधी दे बारे भाई। ठीक है जी, जिन्हां ए और सी दे विच सीगा मैं उन्होंने दस देवां भाई। ए और सी दे अंदर सीगा ते ए और सी दे अंदर सीगा। देखो ये क्वेश्चन जिंदा ए और सी कंफ्यूज होने की लोड़ नहीं सी आपां नूं, क्योंकि इस तो पहला जिहड़ा आपां क्वेश्चन कीता हैगा जिहड़ा उस दे विच रोपड़ में तुहानूं दस्सिया, चलो उत्थे रोपड़ दे विच भी तुसीं रहे होंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी दे उत्ते आपां चर्चा करते हैं। ऊड़ा, पटियाला, रोपड़, मलेरकोटला, धूरी। देखो पटियाला दी परली गुठ है जिहड़ी, रोपड़, मलेरकोटला ते धूरी दी गुठ इस इलाके दे अंदर है जिहड़ी वो पुआधी बोली जाती है। ऊड़ा सही है भाई, ऊड़ा है जिहड़ा सही। हुण की है कि देखो बीच की आ गया पटियाला, जलंधर, हुशियारपुर आ गया, हुशियारपुर, जलंधर आ जिहड़ा हैगे है दुआबी दे भाई, आ नहीं गए। हुण अगे देखो रोपड़, कपूरथला, मलेरकोटड़ा। रोपड़ भी आ गया, कपूरथला है ना जिहड़ा अपना ये सूत्र सी भाई, सूत्र सी हुजका। हुशियारपुर, जलंधर, कपूरथला। कपूरथला है ना जिहड़ा ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਆਬੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਦੁਆਬੀ ਦਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੁਆਬੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਰੋਪੜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁਆਧੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, परंतु कपूरथला नहीं गा, तो ईडी ऑप्शन गलत होगा भाई, ईडी ऑप्शन गलत होगा। तो तुसी थोड़ा देखो जे आपां नूं दुआबी का भी पता होंदा ना तां भी अपना ही हो जाता। कई बार की होंदा कि मान लो तुहानूं पुआधी का नहीं पता पुआधी का कोई गल नहीं, तुसी इस टाइम कन्फ्यूज हो गए, तुहानूं पुआधी का नहीं पता पर दुआबी का जिवें पता है। आप इत्थे पटियाला पढ़िया, जलंधर ते हुशियारपुर में पढ़िया, आपां नूं पता लग्या दुआबी दे आ नहीं हो सकता। जलंधर, हुशियारपुर, कपूरथला एक ही है दुआबी दे है, तो कपूरथला इहदे च आ गया, ये नहीं हो सकता। और सस्से च की आ गया, हुशियारपुर आ गया, ये नहीं हो सकता। इत्थे दुआबी बोली जाती है। पिछे रह की गया, ए नंबर ऑप्शन रह गया, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इस हिसाब नाल थोड़ा टाइम लाओ। देखो 40 क्वेश्चन दिते सीगे, 40 क्वेश्चन 40 मिनट दे विच करने हैं, तुसीं 35 मिनट च करने की कोशिश करो। 40 मिनट आपां नूं 40 क्वेश्चन 20 मिनट च करने की कोशिश नहीं करनी। एक क्वेश्चन वास्ते 1 मिनट मिलूगा, कई क्वेश्चन आप 30 सैकंड करांगे, कई 40 सैकंड, कई 1 मिनट च, कई 1.25 मिनट च, कई 1.5 मिनट करांगे, हो जाएगा। 40 मिनट का पेपर है, तुसी कोशिश करो मैं 35 मिनट च करा, मैं 30 मिनट च करा, मैं 35 मिनट च करा, मैं 40 मिनट च करना। आ कोशिश ना करो मैं 40 मिनट का जिहड़ा पेपर है वो मैं 30 मिनट च ही करदा, मैं 25 मिनट च ही करदा, मैं 20 मिनट च ही करदा, नहीं ऐवें ना करो। 40 मिनट का मैं पेपर तुसी कोशिश करो मैं 35 मिनट के अंदर आराम नाल सोच के अपना टाइम लग गया। उत्थे की है कि आपां नूं 1 मिनट 1 क्वेश्चन मिलेगा, 1 मिनट 1 क्वेश्चन आपां नूं मिलेगा, और आपां 1 मिनट 1 क्वेश्चन च लगदा ही नहींगा,
कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जेडे आप 30 सैकंड 40 सैकंड से कर देंगे। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं 1 मिनट लगता है, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्होंने 1.5 मिनट या 2 मिनट लग जाते हैं। परंतु कोई नहीं, क्योंकि आप कई क्वेश्चन 40 सैकंड अंदर किए होंगे। टाइम मैनेजमेंट की समस्या पंजाबी के पेपर च आती नहीं, मैथ के पेपर च आती है। टाइम मैनेजमेंट की कोई समस्या नहीं है, किसी को भी नहीं आती भाई मेरे हिसाब नाल। तो 40 क्वेश्चन दिते तो मेरा मनना यह है कि घट तो घट 30 मिनटा तो उत्ते टाइम लाओ, 30 मिनटा तो उत्ते बेटा 35 मिनट लाओ, कोई दिक्कत नहीं। 40 मिनट भी लग जाए भी कोई दिक्कत नहीं, 35 मिनट लगते तो भी कोई दिक्कत नहीं। 30 मिनट तो उत्ते उत्ते लाओ, इस हिसाब में मतलब 30 मिनट लाया आप, 30 मिनट जिस बच्चे ने लाए 30 मिनट तो उत्ते लाए, 30 प्लस लाए, उस बच्चे ने पूरा पेपर सचेत होके पढ़िया, पूरा पेपर सचेत होके, जल्दबाजी नहीं की। जल्दबाजी कारण सचेत होके पढ़िया तो उसने की कहते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। चलो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, अगे चलते हैं भाई। 17 नंबर पंजाबी की उपबोली पुआधी दुआबी। भाई दुआबी कित्थे कित्थे बोली जाती है? हुशियारपुरा, कपूरथला, संगरूर, कपूरथला, जलंधर, रोपड़, ईड़ी, जलंधर, कपूरथला, बठिंडा, ससा, हुशियारपुर, कपूरथला, जलंधर। हाँ भाई किसी गलत हो तो ईमानदारी ने दस दो भैया, ईमानदारी बड़ी जरूरी है। चलो कोई नहीं, सूत्र सी हुजका, हुशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, डी ऑप्शन सही है भाई, हुशियारपुर, जलंधर, कपूरथला। इस इतने संगरूर आ गया गलत, इतने रोपड़ आ गया, पुआधी गलत, इतने बठिंडा आ गया भाई मतलब मालवे का गलत। 700 ऑप्शन सही है, सारे ने वैसे भी सही है भाई। रिकॉर्डिंग देख रहे तो मैं थोड़ा उन्हें दसता है भाई बाकियों का। 18 नंबर जलंधर विच बोली जाने वाली उपभाषा है। जलंधर च माझी, मलवई, पोठियारी, दुआबी। जलंधर दुआब देखो पॉपुलर है, जलंधर दुआब। जलंधर है जो सेंटर पोजीशन ते है दुआब की, जलंधर दुआब बोलते भी है भाई। सस्सा भाई दुआबी, और वैसे भी अपना सूत्र सी उनके आ गया है भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन इस कारण सही हो रहे है क्योंकि एक दूसरे ने कनैक्ट है। मनु भी उम्मीद सी भाई सब दे सही होंगे और होने भी चाहिए। इतों आपको आ पता लगता है कि अपनी तैयारी है जी वो ठीक हैगी है, आप तत्थां तो जाणू है, तत्थां दे विच आपां कमजोर नहीं गए। जे कितने कमजोर पै रहे आप 1-2 रीडिंग होर लवांगे, स्टार्ट किया है बढ़िया तैयारी हो जाएगी। 19 नंबर भाषा विच शब्द ते अर्थ का संबंध है, कुदरती, आप अधूरा, न्यायुक्त, व्याकरणक। दसो भाई 20 नंबर 19 नंबर भाई। हाँ मैं सोचा सी भाई 1-2 का क्वेश्चन गलत होना चाहिए। आन दो भाई ऑप्शन देखो, तुम इन्ने बंदे जुड़े हो ना, फटाफट तुम दोपहर हुण ना करो, तुम तो दोपहर वाला उत्तर दो, मैं सवेर वाला उत्तर दो जेड़ा इस टाइम ना करो, फटाफट छापन लिए तैयार हो भैया उत्तर मैं किया है। 19 नंबर ठीक है जी, भाषा विच शब्द ते अर्थ का संबंध है। देखो शब्द ते अर्थ का जो संबंध है ना वो आप अधूरा होंदा है, आप अधूरा, व्याकरणक नहीं होंदा। देखो व्याकरण तो होंदा ही नहीं, किवें नहीं होंदा मैं दसदा तुहानूं। देखो अपनी मां हैगी, अपनी मां उन्हें आपां नूं पंजाबी सिखाई है, उन्होंने व्याकरण नहीं आती। मैं अपनी मां की गल करा, उन्होंने व्याकरण नहीं आती, उन्होंने नहीं पता संज्ञा सर्वनाम की है, शब्द की है। उन्हें की किया कि आप अधूरा संबंध बनाया। जे आपां कुत्ते नूं कुत्ता कहने ये आप अधूरा है, अंग्रेज डॉग कहते हैं, कोई वखरा शब्द वरतदा होएगा, ये अपने अपने है। जो मां आपां नूं सिखांदी है, एक बच्चा आप अधूरा सीखता है, ठीक है। और कोई भी शब्द का अर्थ है वो आप अधूरा होंदा है। उन्हें एवं नहीं गा भाई कल तो मैं एवं कह लग जा भाई बांदर नूं कल तो खोता कहांगे, मैं नियम बना दा, कोई नहीं मनेगा। नहीं, ये आप अधूरा आप ही आंदा है। पहले जमाने च की सी कि असुर सी जेड़ा वो देवते नूं क्या करते सी, असुर देवते नूं कहंदे सी। धीरे धीरे की होया कि असुर है जेड़े वो राक्षसां नूं कहण लग गए, आप ही आप अधूरा है, लोग एवं कहने लगे। असुर है जेड़ा वो राक्षसां नूं कहण लग गए और सुर है जेड़े वो देवतियां नूं कहण लग गए। ये आप अधूरा संबंध होंदा है। ये संबंध जेड़ा व्याकरणक नहीं है, भाषा विच शब्दां दा शब्द दे अर्थ है ना, ये व्याकरणक नहीं है। जिवें बंदा जो बोलता है अगला कहता है मेरे ढिड च वट पै रहे है, मैं वट ते तुरी जाना है, मैं वट के चपेड़ मारूंगा, मैं वट के इदा करूंगा। आप शब्द
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਕੇ SMS ਕਰ ਦੋ ਬਈ, ਸਮਝ ਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਆਪੀ ਆਪ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਬਈ, ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਪੂਲਰ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਬਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਣ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਯੂਕਰਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ। ਵਿਆਕਰਣ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। 20 ਨੰਬਰ, ਵਿਆਕਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਈ। ਵਿਆਕਰਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। 21 ਨੰਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਬਈ? ਭਾਰਤੀ ਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, द्राविड़ भाषा परिवार, सामी भाषा परिवार, हामी परिवार। भारतीय आर्य भाषा परिवार है भाई। इनका ये थोड़ा जा क्वेश्चन सीगा गांव वाले चों देता भाई। अगे पंजाबी भाषा का निकास विकास उस दे विचों पाता सीगा भाई, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। ऊड़ा भारतीय आर्य भाषा परिवार है जिहड़ा वो सही है भाई, सभी का सारियां दा सही है भाई। पहली गल तो भारती शब्द आ गया, उत्थों ही देख लेना सीगा, भारती आ गया किसी च, बाकियां च भारती आया ही नहीं। द्रावड़ आ गया, शामी आ गया, हामी आ गया, भारती जे आप नाम ही आंदा होंदा तां भी आपां कर देंदे भारती आरी भाषा परिवार। 22 नंबर, भाषा ते उपभाषा दी वखरता दा आधार है अर्थ, वाक, खेतर, व्याकरण। सी नंबर सही है भाई, खेतर। फटाफट जिदा गलत होया गलत वाला मिनट मारे भाई। भाषा ते उपभाषा दी वखरता दा आधार है BC। ओके देखो, भाषा ते उपभाषा दी वखरता दा आधार खेतर होंदा है, वाक नहीं होंदा। वाक तां किवें हो जाएगा? वाक तां भाई व्याकरण दी एक वड्डी इकाई है। वाक वाक व्याकरण की इकाई है भाई, अलग ही तो कोई संबंध ही नहीं है। वाक देखो, वाक का देखो मैं तुहानू दसां, भाषा वाले भी बोलणगे, उपभाषा वाले भी वाक बोलणगे। थोड़ा एवें सोचना सीगा, जे आपां किसी दे विच कन्फ्यूज होईए, जिवें खेतर है, देखो भाषा का अपना खेतर हुंदा है, उपभाषा का अपना खेतर हुंदा है। हर खेतर दे विच अड्ड अड्ड भाषावां बोलियां जांदियां भाई। राजस्थान च राजस्थानी बोलते हैं, पंजाब च पंजाबी बोलते हैं, जे मालवे वाले मलवई है, दुआबी वाले दुआई बोलते हैं। ठीक है जी, ये खेतर खान वखरेवा है, उस खेतर च रहिंदे तां उस खान वखरेवा आ गया। वाक की है? देखो पंजाबी वाला भी वाक बोलेगा, राजस्थानी वाला भी वाक बोलेगा। हुण पंजाबी दे अंदर उपभाषावां दी गल कर लईए तां दुआबी वाला भी वाक बोलेगा, मलवई वाला भी वाक बोलेगा, पुआधी वाला भी वाक बोलेगा। वो कोई उपवाकां नाल थोड़ी सार लेगा, कोई शब्दां नाल थोड़ी सार लेगा। वाक तां बई सारियां च ही है, ये वखरता दा आधार नहीं है। वाक वखरता दा आधार नहीं है भाई। ओके करो फटाफट SMS अगे चलिए आप। 23 नंबर, बठिंडा ते मुक्तसर जिलियां विच पंजाबी दी किहड़ी उपभाषा बोली जाती है? माझी, मलवई, दुआबी, पुआधी। ठीक है जी, मलवई बिल्कुल सही है। बठिंडा मुक्तसर के अंदर मलवई बोली जाती है, बाकियों का एरिया अलग है। अगर कोई इस नूं भी लैके थोड़ा बहुत कन्फ्यूज है तो उन्होंने की है कि वैसे सारे का उत्तर सही आया भाई। जे फिर भी किसी का अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तत्था तो वो जाणू नहीं है, वो होर तैयारी करे, वो होर तैयारी करे भाई। पूरे तत्था तो जाणू होवे, तैयारी च कमजोरी है, उन्होंने तैयारी अप करनी पऊगी। 24 नंबर, पूर्वी और पश्चिमी पंजाबी दी उपभाषावां दा विभेदक है शब्दावली की विभिन्नता, सहगो समाप्राण धुनियां की विभिन्नता, व्याकरण की विभिन्नता, स्रोतां की विभिन्नता। ठीक है जी, सारे का सही है भाई। अच्छा चलो ठीक है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें नहीं किया उन्हें ई लिखना है, ई लिखते मैनू पता लग जूगा छड़ता।
हाँ ई लिखना है। और जिहदा गलत होवे जल्दबाजी च करना है भाई, बाद च समझ आ गई, बाद च समझ आ गई भाई मैं करना ये सी करना सी, जल्दबाजी करना जे लिख दूंगा क्योंकि उन्होंने बात समझ आ गई, विश्लेषण की लोड़ उन्होंने नहीं है। और जे वो विश्लेषण च फस गया तो वो लिखूगा दो दा मारूगा, दो ऑप्शन दसूगा। ठीक है जी। पूर्वी ते पश्चिमी पंजाबी दी उपभाषावां च की है शब्दावली दी विभिन्नता, सहघोष महाप्राण धुनिया दी विभिन्नता। देखो सहघोष महाप्राण धुनिया ना उनकी विभिन्नता हैगी है भाई, आ ध्यान रखियो एड़ा। व्याकरण की विभिन्नता, व्याकरण तो वही है, व्याकरण थोड़ी बदली है, संज्ञा सर्वनाम वगैरह व्याकरण तो सब वही है, आ नहीं है भाई। स्रोत की विभिन्नता, स्रोत एक ही है, देखो स्रोत एक ही है क्योंकि वो भी उपभाषा है, अपनी उपभाषा, स्रोत एक ही है। हुण अगे शब्दावली की विभिन्नता और सहघोष महाप्राण धुनिया की विभिन्नता। हुण शब्दावली की विभिन्नता भी है थोड़ी, परंतु की है कि सहघोष महाप्राण धुनिया की विभिन्नता ज्यादा है क्योंकि शब्दावली की विभिन्नता होंगी तो भाई अपन समझ ही ना आती, फिर थोड़ी अपन लहंदी समझ आती, और लहंदी अगर कोई बोलता है अपन समझ आ जाती है। ज्यादा शब्दावली की विभिन्नता अपनी राजस्थानी वाले नाल हैगी है, हिंदी वाले नाल हैगी है, अपन उनकी समझ नहीं आती। परंतु वो की है अगर कोई भी पश्चिमी पंजाब के अंदर कोई तुसी देखते होंगे यूट्यूब चैनल से देखते होंगे, तो पूरी की पूरी समझ आती है, पूरी समझ आती है। तो इस कारण शब्दावली की विभिन्नता ये नहीं होएगा। डी ऑप्शन सहघोष महाप्राण धुनिया की वरतों करते हैं भाई, आप उनकी वरतों बहुत घट करते हैं, आ गल है। 25 नंबर भाषा का आधार है मनुख, वाक, शब्द, धुनि, प्रतीक। ठीक भाई, मनुख भाषा का आधार नहीं है, वाक भी भाषा का आधार नहीं है भाई, शब्द भी नहीं है भाई, धुनि प्रतीक है ना जेडे बने हुए, वो की कहते भाषा का आधार है भाई, धुनि प्रतीक। सस्सा ऑप्शन सही है 25वें का। अगे 26 नंबर, भाषाई धुनि प्रतीक बनते ने कुदरती आप अधूरे ढंग नाल धर्म द्वारा रबी दात। आप अधूरे बनते हैं भाई, आप अधूरे आपे बननगे धुनि प्रतीक, ਐਵੇਂ नहीं कि आप बना देंगे, नहीं नहीं। हुण की है कि ऑटोमैटिक तुसी वेख रहे होंगे, तुसी वेख रहे होंगे आप अधूरे विच आप अधूरा ही ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਤੇ ਗੰਜਾ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੰਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੰਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਤੂਕ ਆਪ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। 27 ਨੰबर, ਭਾਸ਼ਾ ਊੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਜ ਹੈ, प्राकृतिक दात है, ਸੁਭਾਵਿਕ दात है, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਿਆ है। ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? आन दो भाई, आन दो, मिनट मारो बस, जिन्हें छड़िया हो ई लिखे भाई, नक्की होए काम। सताई नंबर, मनुखी खोज है, प्राकृतिक दात है, स्वाभाविक दात है, ऐतिहासिक है, की है? भाषा की है भाई, मनुखी खोज है। भाषा की है, मनुखी खोज है भाषा। भाषा मनुख ने खोजी है, पहला वो धीरे धीरे फिर भाषा बोलने लगे भाई, थोड़ा पीछे जाओ। भाषा है, मनुखी खोज है, स्वाभाविक दात नहीं है। ये एवं नहीं है कि बंदा शक्ति सुभाविक होनी चाहिए उनके कोल, सुर तंदा वगैरह ये सब कुछ होनी चाहिए अगे, बस क्षमता होनी चाहिए, वो बोल लेगा भाषा। ये मनुखी काढ़ है, उन्होंने मनुखी काढ़ कढ़ी है, पंजाबी वाले ने पंजाब की कढ़ती, राजस्थानी अंग्रेजा ने अंग्रेजी कढ़ ली। अगर सुभाविक दात होती ना, फिर सारे ने एक ही भाषा बोलनी सी, बस एक ही, सारिया मतलब पूरे विश्व के अंदर एक ही भाषा होनी सी, वो जन्म तो ही उन्होंने मिलनी सी, बस दूजी भाषा बोलनी नहीं सी। दूजी भाषा कितने बोलनी सी, उन्हें तो बस एक ही बोलनी सी, अगले ने चक के हलो। परंतु ये मनुखी खोज है, आप अड बोल रहे हैं, अमरीका वाले अड बोल रहे हैं, विदेशा सारे पास अड अड बोल रहे हैं सारे। भाषा का उद्देश्य है विचारों नू लड़ी च परोना, विचार देना, विचार आदान प्रदान करना, विचारों का प्रगटा करना। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। खुश दो जणिया का गलत हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, दस देने। देखो भाषा का उद्देश्य है, दो अच कन्फ्यूज है, सारे बच्चे दो च कन्फ्यूज होए होंगे भाई। ईड़ी विचार दान प्रदान करना और सस्सा विचारों का प्रगटा करना, इन्होंने विच कहते हैं कि चक्कर पै रहा सी साडा। ते भैया इनका ईडी ऑप्शन है जेड़ा वो सही है। क्यों सही है? इहदे विच कारण की है?
कि देखो आदान ते प्रदान विचारां दा प्रगटा करना, इहदे सिर्फ प्रगटा है, विचार सिर्फ प्रगट हो रहे हैं। ते भाषा का उद्देश्य कला विचार प्रगटाना नहीं है, विचार प्रगटाना भी है और नाले विचार लेना भी है, दोनों है। डबल कम्युनिकेशन स्किल है भाषा है जी। विचार वटांदरा होगा, एक बंदा बोलेगा दूजा सुनेगा, दूजा बोलेगा पहला सुनेगा, एवं नहीं है पहला बंदा आया और बस प्रगटावा करी गया करी गया करी गया, बस बाकी सारे अपने अपने घर चले गए। नहीं, इत्थे ऑप्शन है जो छोटा पै जाता है भाई, इत्थे कली हाँ विचार ग्रहण भी करता है भाई, कल्ले विचार प्रगटाउंदा नहीं है, विचार प्रगटान दे नाल नाल विचार ग्रहण भी करने हैं भाई। ईडी ऑप्शन सही है। थोड़ा देखो कोई नहीं, धीरे धीरे स्किल डेवलप हो जाएगी, मेरी कोशिश रहेगी भाई इस तरीके ना जो निक्के मोटे क्वेश्चन है इन्हां विच ना आपां फसीए। कोई नहीं भाई, ओके SMS कर दिया करो, मिनट मारिया करो, टाइम ना लाया करो, फिर उस पर लगे रहने आप। अगे जी भाषा संपत्ति है, निजी समाजक ध्वनियात्मक शाब्दिक, दसो जी। सही है जी, सारे का ही सही है। निजी समाजक सारे ही समाजक दस रहे, बिल्कुल सही है। समाजक संपत्ति है, समाज तो प्राप्त होती है भाई, कल्ले बंदे की केड़ी भाषा होती है, समाजक सही है। भाषा प्रबंध है जटल बज्या स्वतंत्र शाब्दिक, आन दो भाई, आन दो आन दो फटाफट। ठीक है जी, सारे दे गलत है। जेड़ा भाषा प्रबंध है ना वो स्वतंत्र है, जटिल नहीं है भाषा प्रबंध। पर जटिल होंदा तो फिर आप थोड़ी सीख सकते सीगे। भाषा प्रबंध है ना जटिल होंदा फिर आपको कितना आंदा, यह बस स्वतंत्र है। आप मुहारी जी, आप हदूरी आप मुहारी भाषा चलती रही है, आप अधूरी भाषा आप ही चलूगी। पहला अपने तुसी वेख्या होगा आज तो कई साल पहला अंग्रेजी की वरतों जी घट सी, फिर अंग्रेज आए, अरबी फारसी की वरतों पंजाबी च वध सी अखरां की, फिर उस तो बाद अंग्रेजी की वरतों वध गई, हुण अंग्रेजी की वरतों वध रही है भाई। ये भाषा जिहड़ा प्रबंध है ये की कहते स्वतंत्र है, अपने आप स्वतंत्र प्रबंध है, जटिल नहीं है भाई। जटिल अगर इन दोनों ऑप्शन टक्कर कर दी तो स्वतंत्र जिहड़ा वो भारू पैंदा है भाई, जटिल नालों। जटिल होई तो फिर आप कित्थे सीख सकने सीगे, किधर अंग्रेजी तो नहीं लैके दिमाग च, अंग्रेजी सीखनी बड़ी जटिल है। स्वतंत्र है भाई, ईडी ऑप्शन सही है। 31 नंबर केड़ी उपभाषा भारती पंजाब तो इलावा पाकिस्तान पंजाब के आले दुआले के इलाके विच भी बोली जाती है? झांगी मलवई माझी दुआबी। देखो जिन्होंने आ क्वेश्चन छड्या है ना, जिन्हें भी आ क्वेश्चन छड़ रहे हैं, तैयारी तैयारी कमजोर है भाई, तैयारी कमजोर है। तैयारी तैयारी ते जोर दो, तैयारी ते जोर दो, टाइम कड्डो भाई। कम से कम मैं तुहानू कहा जे नंबर लैके आना है तो 10 घंटे पढ़ना पऊगा। 8 घंटे का पढ़ो ही पढ़ो भाई, 8-10 घंटे का पढ़ो, नंबर लैके आना है 17 च। चलो कोई नहीं, हुण देखो भारत तो इलावा पाकिस्तान च ही बोली जाए जी, भारत तो इलावा पाकिस्तान च बोली जाए, सारियां दी गलत है। ओहो हो, देखो माझी नहीं कि माझी, माझी कितने कितने बोली जाती है, सोचो थोड़ा थोड़ा दिमाग सोचो तुसी, माझी कितने कितने बोली जाती है। चांगी कितने बोलते, चांगी सिर्फ पाकिस्तान च बोलते, अपने इधर नहीं बोलते। मलवई है सिर्फ भारत च बोलते हैं, मलवई अपने आप मलवई वाला खेतर, बठिंडे वाला, मुकतसर माझा, मुकतसर तो लैके इधर बठिंडा, बठिंडे तो अगे अगे तक पटियाली तक लगता है, पटियाली तक लगता है। पर माझी का इलाका की है अमृतसर। अरे अमृतसर की परेड याद कर लेंदे, बाघा बॉर्डर याद कर लेंदे, अमृतसर का याद करते हुए माझा केड़ा है, माझी कितने कितने बोली जाती है। माझी बोली जाती है अमृतसर तो लेके लाहौर तक, अमृतसर के आसे पासे वाला इलाका। जो तुम अमृतसर बारे सोचते तो पूर्वी पाकिस्तान आ जाता, जो लाहौर बारे सोचते तो पश्चिमी पाकिस्तान आ जाता भाई, तो माझी ऑप्शन आ जाता। देखो जिन्हें तो इस क्वेश्चन छड्डिया है उनकी तैयारी च कमजोरी है, घट पढ़िया, तैयारी उत्ते
ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਯਾਰ ਆਪਣੇ, ਕੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਣਗੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ 3 4 ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਬਸ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਮਾਗ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਆ ਹੈ, ਲਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਦੋ। ਪਰੰਤु ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਕ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਕ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ 70% ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਠਾਹ ਦੇਣੀ, ਲਾ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੋ, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ 32 ਨੰਬਰ ਵੈ, ਵੈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੈ ਕਿਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਹਿੰਦੀ, ਮਾਝੀ, ਸਿੰਧੀ, ਦੁਆਬੀ। ਆਣ ਦੋ ਬਈ, ਆਣ ਦੋ ਫਟਾਫਟ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਵੈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਵਈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ, ਜੇ ਮਲਵਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੁਆਬੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਿਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ, ਡੋਗਰੀ, ਪਟਿਆਣੀ। ਮੈਂ ਦੀ ਮਲਵਈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੀ ਮਲਵਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲਹਿੰਦੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਡੋਗਰੀ, ਪਟਿਆਣੀ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਪਾਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਾ ਨਾ ਟੱਪ ਜਾਓ ਕਿੱਧਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੋਠਿਆਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਠਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੋਠਿਆਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਪੋਠਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਪਰੰਤੂ ਪੋਠਿਆਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਪੋਠਿਆਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਪੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ। ਡੈ ਦੀ ਥਾਂ ਅੜੈ ਕਿਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਪੋਠਿਆਰੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਡੋਗਰੀ, ਪਟਿਆਣੀ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 35 ਡੈ ਦੀ ਥਾਂ ਅੜੈ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ, 35 ਦਾ ਲਿਖੋ ਬਈ ਫਟਾਫਟ, ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਬਸ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਦੇ। ਡੈ ਦੀ ਥਾਂ ਅੜੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੋਠਿਹਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸਾੜਾ। ਡੋਗਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ, ਡੋਗਰੀ ਚ ਨਹੀਂ। ਡੋਗਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਠਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੜੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਾੜਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਨੋਟਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪੋਠਿਹਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਡੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 36 ਨੰਬਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਲਵਈ, ਪੋਠਿਹਾਰੀ, ਪਟਿਆਣੀ, ਮਾਝੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਝੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। 37 ਨੰਬਰ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਰ
शब्दावली, वाक बनतर, ध्वनि प्रबंध, उचार लहजा, ध्वनि प्रबंध, उपरोक्त सारे सारे का सही है भाई। उपरोक्त सारे ही है भाई। शब्दावली की बनतर भी है, ध्वनि प्रबंध भी है, लहजे की सब है। भाषा अंदर है, शब्द स्वर प्रणाली संबंध है। आ दो भाई, इंदा दो उत्तर। आ क्वेश्चन ठीक है। भाषा अंदर की है सीडी च, वाह बई वाह, सीडी च नेड़े लै गए खिच के सीडी वाले। ठीक है भाई, सीडी चो एक ऑप्शन सही है। ठीक है जी, हम गल भाषा अंदर दसना जी, भाषा अंदर की है। भाषा अंदर एक पूरी की पूरी प्रणाली है भाई, प्रणाली प्रणाली है भाषा अंदर, पूरे का पूरा एक सिस्टम है। सिस्टमैटिक ढंग नाल भाषा चलती है। भाषा अंदर तुहानू शब्द भी मिल जाएंगे, स्वर भी मिल जाएंगे, व्यंजन भी मिल जाएंगे, वाक भी मिल जाएंगे, उनके अंदर संबंध भी होंगे, सब कुछ होंगे। एक भाषा एक प्रणाली है, उस प्रणाली नू लोग है फॉलो करते हैं कि संबंध रिश्ते नाते वगैरह कुछ नहीं है, कोई रिश्ता वगैरह संबंध वाली गल इस विच नहीं है भाई। ये प्रणाली है कि जदों संबंध सोचिया तो भाई किंदे नाल संबंध स्थापित किया सी भाई, किस दे नाल, उत्थों पता लगूगा ना, उत्थों पता लगूगा भाई बीमारी कित्थे शुरू हुई, किस नाल संबंध तुसीं स्थापित कर लिया। प्रणाली होंदी है भाई, एक भाषा एक प्रणाली होंदी है, उसनू बंदा सिखदा है, करदा है, सब कुछ उहदे विच सारा कुछ आ जांदा है। 39 नंबर, भाषा का आधार है समाज, स्वर, मनुखी तजर्बा, मनुख। की है आधार भाई भाषा का? भाषा का आधार समाज है भाई। चलो ठीक है, होर किसी का ऑप्शन भाई? मनुख नहीं हो सकता, स्वर नहीं हो सकते, समाज ते मनुखी तजर्बा दोनों विचों लगाना सी भाई। भाषा का आधार समाज या मनुखी तजर्बा। चलो भाई समाज करता ता भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं है भाई। ऊड़ा ते ईड़ी दोनों सही है भाई, इसते ऊड़ा ते ईड़ी दोनों सही है, समाज ते मनुखी तजर्बा भाई। ठीक है, वैसे मनुखी तजर्बा है वध होंदा है भाई, भाषा का आधार है जिहड़ा मनुखी तजर्बा वध होंदा है। मनुखी तजर्बे दे नाल, अपने तजर्बे दे नाल, एक्सपीरियंस दे नाल भाषा है जो बोलता है बंदा। ਐਵੇਂ नहीं कि समाज दे विच रह के भाषा सिखदा जरूर है वो, परंतु समाज दे नाल जुड़ के भाषा सिखदा जरूर है, पर आधार है जिहड़ा उहदा बेस है जिहड़ा वो मनुखी तजर्बा है। मनुखी तजर्बे के आधार ते भाषा बनी है और इस हिसाब नाल मनुखी तजर्बा सही ऑप्शन है भाई इसका। 40 नंबर, पंजाबी भाषा की लिपि केड़ी है? लो भाई सारे दे सही है, गुरमुखी लिपि है। ओके भाई, ठीक है भाई। एक तो ध्यान रखना है भाई, बहुत ज्यादा लोगों ने कोर्स लिता हुआ है परंतु ऑनलाइन नहीं आ रहे। ऑनलाइन आओ भाई, लाइव तुहाडा समस्या का हल होगा, एक स्किल पैदा होगी। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जिन्हें अज तक टीचमेंट ऐप ही नहीं डाउनलोड किया भाई। जिन्होंने भी कोर्स लै रखे है, टीचमेंट ऐप डाउनलोड करो और ऑनलाइन आओ भाई। लाइव टेस्ट सीरीज तुहाडे कारण इसी कारण लाई है लाइव टेस्ट सीरीज। तुहाडा कोई जानकार है जिन्हें कोर्स लै रखे है, उसनू कहो लाइव आओ तुसीं, उहदे नाल समस्या का हल होगा। ठीक है भाई, हुण कुछ गल्लां जिहड़ियां दसणयोग ने। एक तो भाई 40 जिहड़े आपां क्वेश्चन अज कीते हैगे आ, तां इन्हां